Yes, ma'am. He's an academic student. Okay, okay, ठीक है. Good morning. Good morning, good morning. Ma'am. Good morning, ma'am. Good Congratulations. morning, good morning. जयेश, आप academic student हो? Actually, I told the students कि आज GT की class नहीं है, but if anybody has entered, they can exit also. Okay, so we'll begin the class. I'll be discussing all types of essays in 10 sentences. And, as far as the time allows us, I think it will be better to have the class on maps and processes in another session. All the other classes will be taken today. All the other types of graphs will be taken today. So the first graph we'll discuss today is writing a pie chart in less than 10 sentences. Are you being able to see the pie chart file in the shared file? Ma'am, it is line graph. Line. Okay. ये गलत share हो रही है. Okay. Now it is line graph in less than 10 sentences. This is the one you are seeing. Yes, ma'am. It is line graph. Okay. Okay, fine. Okay. So line graph in less than 10 sentences, we begin with this. Okay. And then we'll go to the other files. So whenever we have to write any line graph, or for that matter, any graph, we have to see how to write the introduction. We have to learn how to write the overview. We have to learn how to write the body paragraphs, and special focus has to be done on comparisons. Why comparisons? Why special focus on comparisons? The reason is, just read any question that is in front of you. Just read any question. Here you can see a question. Yes, And ma'am. see Yes, the ma'am. second sentence of this question. See, the graph below shows the percentage of 18 to 25-year-olds in universities in 4 different countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. See, every question will ask you to make comparisons. So comparisons, we'll make special focus on how you can put the vocabulary of language of comparisons in your essay. Okay, so this is the line graph I've chosen, and the video of this line graph writing in 10 sentences is there on YouTube. Okay, and the written part, the PDF version, is there on my website makkadials.com. You can refer to that if you want to see that. Okay. So first we'll learn how to write the introduction. You just have to, in step 1, you have to look at the question and then look at the diagram and try to understand what the data means. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर डायग्राम को देखना है और अंडरस्टैंड करना है कि ये जो डेटा है, ये जो ये लिखा हुआ है वाई एक्सिस पे, इसका मतलब क्या है. ठीक है. जैसे कि फ्रॉम दिस ग्राफ वी अंडरस्टैंड हाउ मेनी 18 to 25-year-old adults were studying at universities in these countries. ये जो गिवन कंट्रीज हैं, इनमें कितने 18 to 25-year-old जो हैं वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे. ठीक है. So then what we do, to better understand, we have to speak out one line with the data. कोई भी एक लाइन बनाओ. जैसे हम कहते हैं 1961 में, in 1961, 25% थाईलैंड, ये थाईलैंड की लाइन है, 25% थाईलैंड के जो 18 से 25 साल के लोग थे वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे. ठीक है. ये एक हिंदी की या अपनी लैंग्वेज में एक लाइन बना लो, आपको पता चल जाएगा 25% क्या है, थाईलैंड के लोग जो कि 18 और 25 साल के अंदर हैं, और ये इतने लोग उस कंट्री के 18 से 25 साल वाले यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड थे, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे. सो इसमें क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश की लाइन बनेगी, इन 1961 25% of 18 to 25-year-olds, year-olds देखो कैसे लिखा है, year-olds in Thailand were enrolled in universities. आपको यहाँ पे क्या चीज सीखनी है कि जब आप कोई एज ग्रुप दिया होता है तो एज ग्रुप को डिफरेंट वेज में कैसे लिख सकते हो. जैसे पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25 ऐसे लिख सकते हो. ये लिख सकते हो द 18 to 25-year-olds. ठीक है. इन थाईलैंड वर एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटीज.
अब मैं धीरे धीरे आपको ये भी बताऊंगी कि ग्राफ्स के लिए आपको अगर 7+ जाना है तो आपको क्या क्या चीजें अच्छे से करनी है, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया कि एज ग्रुप्स को किस किस वे से लिख सकते हो मैम आपको, तो ये मैम थोड़ा सा है। स्टार्टिंग से बताना मेरा। हेलो मैम। क्या मैम थोड़ा मेरा नेटवर्क में इशू था तो मैंने मैंने दोबारा ज्वाइन किया है मैम। स्टार्टिंग से बताओ जरा प्लीज। दोबारा से बताओ, स्टार्टिंग से। हाँ मैम एक्चुअली मेरे इंट्रोडक्शन यस मैम मेरे इंट्रोडक्शन एक्चुअली लिखना नेटवर्क सीख में रहे थोड़ी प्रॉब्लम हैं थी। जुबेर, इंट्रोडक्शन लिखना सीख रहे हैं। और मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी 5-7 मिनट, अभी कुछ ज्यादा निकला नहीं है, सिर्फ यही देखा है कि हमने डेटा कैसे ओके मैम। देखना है, अभी इंट्रोडक्शन पे ही है कि वो कैसे लिखनी है, ठीक है। एक चीज आपको सीखनी है कि 18 to 25 ईयर ओल्ड जो एज ग्रुप्स है इनको कैसे लिखना है। दूसरी चीज आपको मैं बताऊंगी अभी कि जैसे ये कंट्रीज के नाम है ना, इनकी नेशनैलिटीज आपको आनी चाहिए, और कभी एक आध जगह अपने ग्राफ में Yes. नेशनैलिटीज डाल देना कंट्री की जगह पे, ठीक है। ओके, तो अभी आप देखो ये कुछ नहीं अभी निकला आपका। यस मैम। बाकी अभी आपने क्या करना है, ये अब ये जो चीज है इसको आपने जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपने क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको उसको एज सच लिखना है, ठीक है। थोड़े से वर्ड चेंज करके, या आपने डायग्राम से कोई चीज उठा लेनी है और वो लिखनी है इंट्रोडक्शन में। अब आप जैसे ये वाली इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ बिलो शोज। अब आपके आंसर शीट में बिलो ग्राफ होगा? नो, राइट। No. हाँ, तो आपको ये बिलो वर्ड नहीं डालना है, ठीक है। ग्राफ की जगह आप क्या कर सकते हो, द लाइन ग्राफ। ये लाइन ग्राफ है ना, तो आपने उसको लाइन ग्राफ कर दिया, तो थोड़े से वर्ड चेंज करके आपकी इंट्रोडक्शन बन जाती है मैम द लाइन। हाँ जी, मैम 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 जहाँ बिलो आता है मैं वहाँ गिवन ग्राफ भी कर सकते हैं मैम। एक गिवन जगह लाइन बताया ग्राफ था करो उसी ना, पे गिवन लाइन जहाँ ग्राफ बिलो करो, हो आप कर सकते हो। द गिवन लाइन ओके ग्राफ। ओके, ओके बिलो नहीं लिखना आपने, द गिवन लाइन ग्राफ। शोज की जगह पे ना, शोज की जगह पे कई बच्चे बहुत वर्ड्स लिख देते हैं, डिपिक्ट्स लिख इलस्ट्रेट। देते हैं, सिर्फ 2 वर्ड्स लिखने हैं, इलस्ट्रेट्स या कंपेयर्स। ओके, इलस्ट्रेट्स मैम या पोर्ट्रे वर्ड नहीं यूज कर सकते? नहीं, नहीं करना चाहिए बेटे। हमारी ना ट्रेन द ट्रेनर सेशन में दे स्पेशली टोल्ड अस दैट ओनली 2 वर्ड्स। देखो आपने एक ग्राफ लिखना है ना मनप्रीत एग्जाम में, हाँ जी मैम। तो बस आप 2 वर्ड्स कर लो, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई और वर्ड मत ओके मैम। लिखना, पोर्ट्रेज वगैरह सब गलत है, इल्यूसिडेट्स गलत है, डिपिक्ट्स गलत है, डोंट राइट सच वर्ड्स, ठीक है। ओके मैम। हाँ, द गिवन लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स या कंपेयर्स द परसेंटेज ऑफ, देखो कैसे लिखा है, the line graph illustrates the percentage of 18 to 25 year olds enrolled in tertiary education। यहाँ पे क्या लिखा था, इन यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटीज में क्या होती है, कौन सी एजुकेशन होती है, टर्शरी। टर्शरी होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन होती है 5वीं तक, सेकेंडरी होती है 12th तक। तो तीन एजुकेशंस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो यहाँ पे हमने कर दिया एनरोल्ड इन टर्शरी एजुकेशन, ठीक है। सो वी कैन से द ग्राफ बिलो शो। हेलो मैम। हाँ जी, मैम एनरोल्ड से पहले हु नहीं लगा सकते हो? हु एनरोल्ड। हाँ, हु एनरोल्ड इन पर हु के बिना देखो सेंटेंस करेक्ट है। द परसेंटेज ऑफ दीज एनरोल्ड इन टर्शरी, या हु एनरोल्ड कर दो, वो भी करेक्ट है, गलत नहीं है, ठीक है। ओके मैम। Line graph सही illustrates है। the percentage of 18 to 25 year olds enrolled in tertiary education programs in 4 countries from 1961 to 2011, ठीक है। और हम ये लिख सकते हैं the line graph illustrates the percentage of 18 to 25 year olds studying at universities in Thailand, Singapore, Malaysia and Philippines between 1961 and 2011, ठीक है। अब ये जो है, ये इंट्रोडक्शन आपकी कोई भी बना सकते हो, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया 10 में से, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, 1 सेंटेंस Yes, हो गया ma'am. 10 में से। मैम ओके, Yes, ma'am. अब आप चलो इसके ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे के लिए हमें 2 सेंटेंस चाहिए, जो हमारा सेंटेंस 2 और 3 हो जाएंगे ऑफ द होल ग्राफ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप 1 है, आप ना मैक्सिमम या हाईएस्ट वो ढूंढो, मतलब कि कौन सी लाइन सबसे ऊपर है वो ढूंढो। और
फिर आप स्टेप टू में देखो कि ये लाइन जो है इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमने सबसे ऊपर वाली लाइन देखी, ये वाली लाइन है सबसे ऊपर वाली, यहाँ पे ये वाली है सबसे ऊपर वाली, पर इतने हिस्से के लिए ये वाली सबसे ऊपर है और इतने हिस्से के लिए ये वाली लाइन सबसे ऊपर है। ठीक है, फिर इतने हिस्से के लिए फिर ये वाली थाईलैंड वाली लाइन सबसे ऊपर है। ये आपने देख लिया। ठीक है, अब अब आपने ये देखना है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड के लिए कौन सी लाइन सबसे ऊपर है, सिंगापुर वाली। सिंगापुर। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो दैट overall comma it is clear that for majority of the given time period the maximum students of Singapore had enrolled in tertiary education. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो overall it can be seen that Singapore had the highest proportion of 18 to 25 year old studying at universities for majority of the given time period. अब मेरे ना कई बच्चे हैं जिनको मैंने ये वाला ग्राफ पहले भेजा हुआ है, उन्होंने इसको देखा हुआ है और ये ना सारे कई ग्राफ्स में ये लाइन अप्लाई करते हैं और बिल्कुल सही अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये आप थोड़े थोड़े ऐसे करके ना इन सेंटेंसेस के एक तरह से थोड़े रट्टे मार लो, ताकि आपका ना, देखो कोई कंप्यूटर भी होता है ना, उसके अंदर थोड़ी इनपुट डालते हैं तो आउटपुट निकलती है। ये इनपुट वाले सेंटेंस है, आउटपुट में इंटेलिजेंटली आपने इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और अपने अपने ग्राफ के हिसाब से लिख देना है। गॉट इट? ठीक है, overall it can be seen that Singapore had the highest proportion of 18 to 25 year olds studying at universities for majority of the given time period. So Singapore had the highest percentage of 18 to 25 year olds studying at universities for majority of the given time period. ये हो गया स्टेप 1, मैक्सिमम और हाईएस्ट वाला एक सेंटेंस हमने बना दिया। ठीक है, स्टेप 2, ओके, ये स्टेप 1 थे तीनों। स्टेप 3 सेंटेंस 1 बनाने के लिए। अब सेंटेंस 2 के लिए हमने क्या करना है, सेंटेंस जो 3 है ओवरऑल, पर ओवरऑल का सेंटेंस 2 है, सेंटेंस 3 है पूरे पूरे ग्राफ का, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोडक्शन है। ओवरव्यू के 2 सेंटेंस है, उसमें से जो दूसरा सेंटेंस है वो हमारे ग्राफ का तीसरा सेंटेंस है। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस के लिए हमने ट्रेंड्स ढूंढने हैं। व्हाट आर ट्रेंड्स? ट्रेंड्स आर चेंजेस ओवर टाइम। लाइन ग्राफ में ये आप देखो, एक्स एक्सिस पे हमेशा 99% ऑफ द टाइम्स यहाँ पे क्या होंगे, ईयर्स होंगे। ठीक है, लाइन ग्राफ में। अब ये जो ईयर्स दिए हुए हैं, तो इसमें हमें ट्रेंड देखना है। ट्रेंड इज ए चेंज ओवर टाइम। तो ये थाईलैंड के बच्चे हैं 25%, 61 में, और यहाँ पे हैं ये 42% 2011 पे। तो ट्रेंड क्या है? इंक्रीजिंग। सिंगापुर में इनिशियल 15 है और फाइनल 40 है, ट्रेंड इंक्रीज। मलेशिया में इनिशियल 2 है और फाइनली है 15, ट्रेंड इंक्रीज। फिलीपाइंस में इनिशियल 7 है और फाइनली है 15। फाइनली मैम, जो हम ट्रेंड देखते हैं दैट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, राइट? यस यस, हम बीच वाला टाइम नहीं देखते हैं। नहीं उसमें नहीं देखते, हमने ओवरऑल ट्रेंड देखा। ठीक है, तो ये आप ट्रेंड का मतलब होता है फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट को देखो। लास्ट पॉइंट ऊपर है तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लास्ट पॉइंट नीचे है तो डिक्रीजिंग है, और फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक ही पॉइंट है तो स्टेबल ट्रेंड है। और बीच में आप लिख सकते हो, बीच में ओवरऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड विद फ्लक्चुएशन। ये समझ आ गई लैंग्वेज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो, तो ये हमने ट्रेंड देख लिया, चारों कंट्रीज का इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? ऑल्सो देयर वाज एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 18 to 25 year olds opting for higher education in all the given countries. तो 18 to 25 year olds का ट्रेंड इंक्रीजिंग था ना, जिन्होंने ऑप्ट करा हायर एजुकेशन के लिए सारी कंट्रीज में। तो ये हमारे दो सेंटेंस हो गए इंट्रो के। ठीक है, आपको पता है उसका ट्रेंड कैसे बना? ईयर उसके फिर एक मैक्सिमम मिनिमम का बना दो, एक कंपैरेटिव मोरलेस का बना दो। वो उस पे हम आएंगे जब ऐसा कोई ग्राफ आएगा। ठीक है ਮਿਸ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਈਅਰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਓਨਲੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਈਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੋਰ ਕੰਪੈरेटिव ਫਾਰਮ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ,
fluctuations ਨੂੰ ਨਹੀਂ write ਕਰਨਾ ਕਿ like it also suffers some fluctuations in between, no need to write that in overall. ओवरऑल में आपने ना देखो, अगर आपके पास एक ही लाइन है वो फ्लक्चुएशन, आप उसमें फ्लक्चुएशन मेंशन कर दो, इसमें ना जो चीज ओवरव्यू में रह गई वो आगे चली जाएगी। 2 सेंटेंसेस में जिस्ट निकल रहा है ना, Okay. तो वो लिख दो और फिर बीच में लिख दो कि फ्लक्चुएशन थी जब आप हर लाइन को एक्सप्लेन करोगे। Okay मैम। ठीक है, वहां लिख दो आप, वर्ड तो ये डालोगे फ्लक्चुएशन, ऐसे नहीं होगा कि इस ग्राफ में फ्लक्चुएशन वर्ड के बिना पूरा ग्राफ लिखा जाए। ठीक है, तो ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि फ्लक्चुएशंस हैं। ठीक है, तो फिर हमारी 3 सेंटेंसेस होगी अभी तक। वो 3 सेंटेंसेस टोटल ये बने, The line graph illustrates the percentage of 18 to 25-year-olds enrolled in tertiary education programs in 4 countries from 1961 to 2011. Overall, it can be seen that Singapore had the highest proportion of 18 to 25-year-olds studying at universities for majority of the given time period. Also, there was an increase in the proportion of 18 to 25-year-olds opting for higher education in all the given countries. ठीक है बेटे, all good till now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes मैम। Yes मैम। Okay. यस मैम। चलो अब हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ्स के लिए। बॉडी पैराग्राफ्स के लिए हमें ग्राफ को 2 हाफ्स में डिवाइड करना है। अगर हम देखो, पहले मैं ऐसे नहीं लिखती थी, ये मुझे इंद्रुप ने सिखाया मेथड, और इसमें ना लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन हम ज्यादा डाल सकते हैं। अगर मैं पहले पता है क्या करती थी, बच्चों को कहती थी एक एक लाइन पकड़ो और उसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, अब उसको जब हम एक लाइन को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें एक खत्म होगी, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन नहीं आती। अब इस मेथड में हमने क्या नहीं है, उसमें नहीं आती, उसमें कम आती है, तो हमें लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन पे बहुत फोकस करना है। तो हमने ना एक लाइन कहीं पे भी ड्रॉ कर देनी है जहाँ पे कोई डिमार्केशन आ रही है। जैसे इसमें हम 81 पे भी ड्रॉ कर सकते थे, देखो 81 पे भी ऑलमोस्ट चेंज आ रहा है सारे ट्रेंड्स का। आप कोई ऐसा एक पॉइंट ढूंढ लो जहाँ पे कुछ खास है एक जैसा, और वहां पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सको और ग्राफ को 2 हिस्सों में बांट सको। ठीक है, वो लाइन कई बार किसी ग्राफ में कई जगह आ सकती है, तो उसको उस वे में डाल दो। और ये मैंने इसमें यहाँ पे डाली है 91 पे। ठीक है, अब हमने 2 हिस्सों में बांटना है, जो बॉडी पैराग्राफ 1 है और बॉडी पैराग्राफ 2 है। हमने इसको कैसे करना है, ग्राफ को 2 हिस्सों में बांट लिया। बॉडी पैराग्राफ 1 में 4 to 5 सेंटेंस हमने जो 4th and 5th सेंटेंस है उसमें क्या करना है, 2 सेंटेंसेस में 1961 का चारों कंट्रीज का डेटा लिख देना है 2 सेंटेंसेस में। और 6th और 7th सेंटेंस जो 2 सेंटेंस है उसने हमने इन चारों कंट्रीज का यहां तक का ट्रेंड लिख देना है 91 तक का, जहां हमने ब्रेक डाली है। ठीक है, ये समझ आ गया? 2 सेंटेंस रिपीट अगेन मैम, मेरे को समझ नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, देखो 4th and 5th सेंटेंस जो बॉडी पैराग्राफ 1 का होगा, मतलब बॉडी पैराग्राफ 1 का वो 1st and 2nd सेंटेंस होगा, पर पूरे ग्राफ का हमारा 4th and 5th सेंटेंस है। आप कंफ्यूज नहीं होना इस बात में, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? नहीं मैम। अच्छा, अब ये जो है ना 4th और 5th, जो मतलब बॉडी पैराग्राफ 1 के 1st सेंटेंस और 2nd सेंटेंस में हमने 61 की चारों कंट्रीज का डेटा लिख देना है। आपके पास ये एक मेथड है, आप मानो इस मेथड को अप्लाई करके देखना, 15 मिनट के अंदर अंदर ग्राफ पूरा करके आपने रखा होगा, 5 मिनट आपको मिल जाएंगे रिवाइज करने के। आपको पता है क्या करना, फटाफट पहले ईयर का डेटा लिख दो सारी कंट्रीज का। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में आपने क्या करना है, 61 to 91, ये 61 है और ये 91 है, चारों कंट्रीज के ट्रेंड लिख देने। अभी आपके सामने सेंटेंस आएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, अब देखो बॉडी पैराग्राफ 1, गिव इनिशियल डेटा फॉर एवरी कंट्री, डेटा फॉर 1961। स्टेप 2, ट्राई टू यूज कंट्रास्ट वर्ड व्हाइल गिविंग डेटा। अब आपने जब डेटा देना है ना, आपने कंट्रास्ट वर्ड यूज करना है, जैसे व्हाइल, वेयर एज और बाय कंट्रास्ट। ठीक है, ये वाले वर्ड आपने यूज करने हैं जब डेटा लिखना है। अब देखो इन 1961 the proportion of 18 to 25 year Thais enrolled in universities was 25% and it was followed by Singapore at 15%. तो 1961 में जो थाइस की जो प्रोपोर्शन थी, थाई मैंने वो डाल दी है नेशनैलिटी। यस, नेशनैलिटी है मैम, थाईलैंड। जो परसेंटेज ऑफ थाइस थी वो 25 थी, which was followed by Singapore at 15%। एक सेंटेंस बन गया? यस मैम।
अब दूसरे सेंटेंस में मैंने बाई कंट्रास्ट क्यों डाला है? आप बता सकते हो क्यों डाला है यहाँ पे बाई कंट्रास्ट? मैम उसमें कम है ना, जिनकी कम है। बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है। देखो डिफरेंस ज्यादा है मैम इसमें। 25-15, ये सिर्फ 7 और 2 है, तो हम बाई कंट्रास्ट डाल सकते हैं कि उनकी तो इतनी थी, बाई कंट्रास्ट इन 2 कंट्रीज की इतनी थी परसेंटेज बच्चों की जो पढ़ते थे यूनिवर्सिटीज में। समझ तो गए? मैम अगर ज्यादा होती इनकी तो फिर बाई कंट्रास्ट नहीं डाल सकते थे? फिर नहीं डाल सकते, फिर सिमिलरली करके डाल देते, ओके, है ना? सिमिलरली करके डाल देते, ठीक है? अब यहाँ पे बाई कंट्रास्ट कितना अच्छा लग रहा है। बाई कंट्रास्ट द परसेंटेज ऑफ 18 to 25 year old studying at universities in Philippines and Malaysia was only, थी सिर्फ 7% and 2% respectively। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ओके, यस मैम। अब हमने जो 2 सेंटेंस हमारे बन गए बॉडी पैराग्राफ 1 के, ठीक है? मैम यहाँ वॉज की जगह वर नहीं आएगा? परसेंटेज, अच्छा हाँ, बड़ा अच्छा आपने ये पूछा है। परसेंटेज जब वर्ड आ जाता है ना, वो फिर वॉज आता है, परसेंटेज वॉज ओनली। ओके, जैसे अगर हम लिखते बाय कंट्रास्ट the 18 to 25 year old Thais studying at 18 to 25 year old studying at universities in Philippines and Malaysia were, फिर मैं परसेंटेज वर्ड नहीं डालती, तो सिर्फ बच्चे, ठीक है, फिर वर्ड करती, पर मैंने परसेंटेज ऑफ वॉज या नंबर वर्ड होता है तो भी वॉज आता है, ठीक है? सही है। अच्छा, फिर स्टेप, हाँ ये बोलो। नेशनैलिटीज में हम कैसे, मतलब ये कितनी हम सारी अपने को एक बार देखनी पड़ेगी कि लर्न करनी देखो पड़ेगी? मैंने ना एक छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है करीबन 50 नेशनैलिटीज की, जो कि मोस्टली ग्राफ में देखे गए हैं, ठीक है? वो हाँ आप जी। मुझे रिमाइंड करा देना, मैं आपसे वो फाइल शेयर कर दूँ, वो कर, ओके मैम। ठीक है? मैंने बड़ा होमवर्क करके रखा हुआ है ना, काम आसान करने के लिए। तो पढ़ाने के लिए पहले खुद को होमवर्क करना पड़ता है ना। हाँ, बड़ा, कहते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू हैव 15 minutes टू फेल ए ट्री, यू शुड वेट योर एक्स फॉर 45 minutes। इसका मतलब पता है? हाँ, वो एक्स को धार देनी पड़ती है, अगर उसमें ज्यादा टाइम। 15 मिनट हो आपको पेड़ काटने के लिए, तो धार देने को कितना टाइम लगाना पड़ता है? 45 मिनट। 45। समझ गए? तो अगर, तो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है प्रिपेयर करने के लिए लेक्चर, ठीक है? चलो, अब हम स्टेप 3 एंड स्टेप 4 पे आएंगे। अब हमने ट्रेंड्स देने हैं 2 सेंटेंसेस में। 2 सेंटेंस हो गए फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ के, ठीक है? यस मैम। अब हमने Yes, ma'am. 2 सेंटेंस और लिखने हैं। वो कैसे लिखेंगे? देखो, फ्रॉम 1961 टू 1991, क्योंकि हमने ये 1991 पे ब्रेक डाली है, ठीक है? तो हमने क्या लिखना है? फ्रॉम 1961 टू 1991 देयर वाज ए स्लाइट डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 18 टू 25 ईयर। ये देखो, देयर वाज ए स्लाइट डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 18 टू 25 ईयर ओल्ड थाइज। ये थाइज है ना? और ये स्लाइट डिक्रीज है 25 से 20, ठीक है? स्लाइट डिक्रीज, हाँ। year olds from Thailand studying at universities while, अब ये देखो मेरा जो while है, while word मेरा comparison contrast का word है। while the proportion increased slightly to around 15% for both Malaysia and Philippines। देखो हमने लिखा है कि थाइस की परसेंटेज तो स्लाइटली डिक्रीज हो गई, पर किस किस की इंक्रीज हुई है? मलेशिया की और सिंगापुर की सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। ये देखो 2 से हो गई 15, 7 गुना। ये 15 से हो गई 35, ऑलमोस्ट 2.5 गुना। सिग्निफिकेंट इंक्रीज है ना? यस मैम। हाँ, सो हमने लिखना है, स्लाइडली लिखा मैंने आपने स्लाइडली लिखा है, सिग्निफिकेंट नहीं लिखा आपने। अच्छा, मैंने वहां स्लाइटली लिखा है। हाँ, स्लाइटली। इंक्रीज स्लाइटली टू अराउंड 15% फॉर बोथ मलेशिया एंड फिलीपाइंस। अच्छा, मैंने क्या करा है? मलेशिया एंड फिलीपाइंस की लाइन ले ली है, तो ये जैसे 7 से 15 हुआ है, और ये हुआ है 2 से 15। तो ये 2 से 15 तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, और इवन 7 से 15 भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, ठीक है? क्योंकि इनकी बिगिनिंग पॉइंट के हिसाब, स्लाइटली को हम चेंज कर सकते हैं, सिग्निफिकेंटली कर सकते हैं, ठीक है? यस मैम।
मैम while और whereas इंटरचेंजेबल है? हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल इंटरचेंजेबल है, ठीक है। मैम यहाँ पे- वाइल में और वेयर एज में क्या फर्क है मैम? दोनों यूज कर सकते हैं एक ही जगह हम? हाँ, यहाँ पे दोनों इंटरचेंजेबल है, पर कई कई जगह इंटरचेंजेबल नहीं होते, क्योंकि जहाँ पे वाइल से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, वेयर से कभी सेंटेंस बिगिन नहीं होता। नोट करना, ठीक है। Whereas is always a conjunction which joins two sentences. Yes, yes. Okay. Okay. In Singapore also the proportion rose but with fluctuations. ये देखो मैंने fluctuations word ले आई हूँ. In Singapore also the proportion rose but with fluctuations. ठीक है? And in 1991 about 35% of 18 to 25 year olds were enrolled in university. और 1991 में 35%, about 35% were enrolled. ये आपने देख लिया? Got it? Yes, ओके, अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया, उसमें हमने 4 सेंटेंस लिख दिए, ठीक है। अब हम आ गए बॉडी पैराग्राफ 2 पे। बॉडी पैराग्राफ 2 पे हमारे पास 91 टू 2011 है, ठीक है। हमने क्या करना है, क्योंकि हमने ये वाली फिगर्स सबकी दी हुई हैं, इन कंट्रीज की दी है ना, इस ईयर से इस ईयर तक यहाँ पे बढ़ गया, इतना बढ़ गया, हमने दिया हुआ है ना सबका। अब हमने 91 टू 2011 का कैसे लिखना है, ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स। अब 91 टू 2011 बाई चांस 20 इयर्स है, 20 इयर्स इज 2 डेकेड्स। ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स फ्रॉम 91 टू 2011 द प्रोपोर्शन ऑफ सिंगापुरियन, फिलिपिनो एंड थाई 18 to 25 year olds went up. Students भी लिख सकते हो इनकी जगह, went up, whereas the figure in Malaysia remained unchanged. इस साल में इन तीनों में देखो फिगर्स ऊपर गई, पर इस कंट्री की, मलेशिया की, उतनी ही रही। हो गया अच्छा सेंटेंस, ठीक है। अब क्या करना है, स्टेप 1 है, ट्रेंड लिख दो। कंपैरिजन वर्ड देखो मैंने whereas डाल दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, while भी डल सकता था, पर while हम डाल चुके हैं पहले, हमने यहाँ पे whereas डाल दिया, ठीक है। अब स्टेप 3 में फाइनल ईयर का डेटा डाल दो और कंपैरिजन वर्ड डाल दो डेटा डालने के लिए। इन 2011 percentage of 18 to 25 year olds studying at university stood at around 40% in Singapore and Thailand. Around 40% कर दो, दोनों कंट्रीज का डेटा आ गया। Yes, ma'am. While the figures for Philippines and Malaysia were considerably lower at 15 and 10% respectively. ठीक है, सिंगापुर एंड मलेशिया की considerably lower at 15 and 10% हो गया। हम कंसिडरेबली कैसे यूज करते हैं ये? काफी लोअर है, कंसिडर करने लायक, ओके कंसिडरेबली लोअर। मैम और मैम यहाँ भी इसी वजह से आवाज आया, जो फिगर्स दे रखा है, नंबर्स दे रखा है। हाँ, फिगर्स कर दिया, वर आ गया। While the figures for वर आएगा यहाँ पे ना, वर आएगा, वर फिगर्स फॉर 2 की है ना फिगर्स। यस मैम, यस मैम एक बारी मुझे ये पैराग्राफ 2 का फर्स्ट वाला लाइन दोबारा से बताइए ना, ओवर द लास्ट 2 डिकेड वाला। हाँ, फर्स्ट सेंटेंस में मैंने ट्रेंड्स लिख दिए ना, फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे मैंने ट्रेंड्स लिख दिए हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस में लिख दिया ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स, that is from 1991 to 2011 the proportion of Singaporean, Filipino and Thai 18 to 25 year olds went up. ये सिंगापुरियन, ये फिलिपिनो और ये थाई, तीनों की proportion went up, whereas this remained stable. ये ट्रेंड वाले सेंटेंस है, क्योंकि ये फिगर्स हमने पिछले पैरे में दे दी थी, हमने अब इन फिगर्स को रिपीट नहीं करा, और हमने फिर 2011 की चारों की फिगर्स लिख दी, बस। अंडरस्टूड मैम। और मुझे वो ईच वाला सेंटेंस बताइए ना, जैसे इसमें दोनों 40 है, तो हमने ईच कैसे लगाने, मतलब ऐसे ही लगा देंगे, पूरा सेंटेंस बना देंगे कि अराउंड 40 ईच। हाँ, ओके ओके, हाँ ठीक है, यहाँ पे ईच आना चाहिए, ठीक है, लगा सकते हैं हाँ, इक्वल है ना। हाँ, इक्वल नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं ईच लगाना है, क्योंकि इसका भी 40 है, उसका भी 40 है, अगर नहीं लगाते इसका मतलब हम दोनों का 40 कह रहे हैं। हाँ ठीक है, वो गलत हो जाएगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो अब हमारा हो गया ये वाला पूरा का पूरा ग्राफ हो गया, ये कंप्लीट ग्राफ है। हमने कुछ चेंज करा था ना ऊपर, क्या करा था, स्लाइडली वाला,
Slightly, there was a स्लाइटली को हमने नहीं सिग्निफिकेंटली नहीं लिखा डिक्रीज है। नहीं है, हाँ स्लाइटली अराउंड ये। एक जगह और चेंज करा था, वो कहाँ था? 40% वाला बात की जगह पर लगाया पर था। लिखा था। हाँ, फिगर्स। मलेशिया नीचे। ठीक है, ईच लगाया था मैम। 40% में ईच लगाया मैम। कहाँ पे? अराउंड 40, ये पहली लाइन में। हाँ, 40% each. चलो, अब आपको ये वाला ग्राफ आ गया। अब मैं जो Yes, yes. सेकंड मैम ग्राफ, हमने मलेशिया के बाद जैसे हमने पहले वॉज लगाया था, wasn't that statement right? कहाँ पे? जो भी हमने करेक्ट किया है मलेशिया के कंसिडरेबली के पीछे जब हाँ, हमने वर्ड लगाया है, मैंने पहले पता है हमने वर्ड was क्यों, लगाया हुआ था। मैंने वॉज पता है क्यों गलत करा है? क्योंकि मैंने यहाँ फिगर्स कर दिया है, फिगर्स वर। ठीक है, अगर फिगर होता, एक ही कंट्री होती, फिगर वॉज, फिगर ऑफ फिलिपाइन वॉज। ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके, फिगर्स प्लूरल है इसलिए वर आ गया। ठीक है, क्लियर है? यस मैम, यस। अब ना ये लाइन ग्राफ है विद द फ्यूचर वोकैबुलरी इन माइंड। अभी हमने लाइन ग्राफ करा है, मैं साथ में ये वाला लाइन ग्राफ टच कर रही हूँ, इसका वीडियो नहीं बना हुआ। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की वोकैबुलरी भी आपको मेरे को करानी थी आज। ओके मैम। ठीक है, अब ये देखो आपके सामने एक ग्राफ है जहां पे 2025 एंड में। हेलो, ये दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. यस मैम। तो हम ना लाइन ग्राफ करते करते ये वाला भी साथ में टच कर लेते हैं कि फ्यूचर की वोकैबुलरी कैसे डालनी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पैराफ्रेज करो इफ, बट अगर पैराफ्रेजिंग आपसे पॉसिबल नहीं होती तो कुछ थिंग्स डायग्राम में से देख लो, कुछ चीजें डायग्राम में से देख लो जब आप इंट्रोडक्शन बनाते हो। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन सीखने वाली है। इसकी इंट्रोडक्शन इसलिए सीखने वाली है, ये देखो इसमें ये द गिवन ग्राफ्स ग्राफ शोज द पास्ट एंड प्रोजेक्टेड फिगर्स। ओके, ये क्वेश्चन ही है, यहाँ पे गिवन ग्राफ है दिया हुआ फॉर द इयर्स 2000 टू 2025। जब आप अपनी इंट्रोडक्शन बनाओगे ना, तो आप 2000 टू 2025 को इकट्ठा मत लिखना, इसको ब्रेक करना फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट टाइम एंड देन से अबाउट द फ्यूचर। समझ गए बात? 2000 टू द प्रेजेंट टाइम कर दो एंड देन टॉक अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, यस मैम। अब देखो यहाँ पे कैसे है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, द गिवन ग्राफ शोज द पास्ट एंड प्रोजेक्टेड फिगर्स। ठीक है, द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट के लिए आप पब्लिक स्पेंडिंग भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब नोट कर लो, ये आपके पास एक सिनोनिम मिल गया गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज पब्लिक स्पेंडिंग। ठीक है, the line graph illustrates the government spending on education, health and roads and railways. ठीक है, during the last 2 decades, क्योंकि last 2 decades की बात हुई है यहाँ पे, ये देखो 2000 से लेके 2020 तक 2 decades हो गए, अभी 2021 शुरू ही हुआ है। ठीक है, and also gives the estimated figures for the next 5 years. ठीक है, शो के ये जो एस्टिमेटेड फिगर्स है, इससे हम क्या बता रहे हैं कि हम फ्यूचर का बता रहे हैं। एस्टिमेटेड फिगर्स हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कैसे लिखा है इंट्रोडक्शन? ये तो समझ में आ गया, सही है। डेकेड्स वाली बात यह है कि एक डेकेड होता है 10 इयर्स का, 2 डेकेड्स हैं 20 इयर्स के। ठीक है, so the Yes, line ma'am, graph it was illustrates the government or public spending on education, health and roads and railways during the last 2 decades and also gives the estimated figures for the next 5 years. अब ये पैराफ्रेजिंग नोट करो टाइम पीरियड के लिए जो करी है, and also gives the projected figures डाल सकते हो। अब कौन कौन से वर्ड डाल सकते हो? estimated figures, predicted figures, projected figures, forecast figures, anticipated figures। ठीक है, पर बेस्ट वर्ड्स है एस्टिमेटेड, प्रिडिक्टेड, प्रोजेक्टेड, एक्सपेक्टेड।
ठीक है. Notice the paraphrase. This can always be done in future graphs. See 1980 से present time तक आ जाओ और फिर जो आगे कुछ भी है उसको future में divide कर दो. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो. अगर ये वाला ग्राफ होता कैसे लिखते? द ग्राफ गिव्स द डैश 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 जो भी है ड्यूरिंग द लास्ट 4 decades एंड आल्सो गिव्स द एस्टिमेटेड फिगर्स फॉर द नेक्स्ट 10 years, फॉर द नेक्स्ट 5 years. ऐसे लिख सकते हो. ठीक है. अब लाइन ग्राफ की हमारी क्या इंट्रोडक्शन बनी? फर्स्ट लाइन, द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स द गवर्नमेंट और पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड रोड्स एंड रेलवेज ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades एंड आल्सो गिव्स द एस्टिमेटेड फिगर्स फॉर द नेक्स्ट 5 years. ये क्लियर हो गया? यस मैम. नाउ वी Yes, कम टू ma'am. द ओवरव्यू के हमने 2 सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस 2 and 3. सेंटेंस 2 पे फोकस ऑन द मैक्सिमम. ठीक है. टिल प्रेजेंट दैट इज बिफोर 2020, तो इसमें पास्ट टेंस यूज होगा. और दूसरा हमने जब हमने मैक्सिमम का करना है तो फ्यूचर भी यूज होगा क्योंकि आगे फ्यूचर है. ठीक है. अब देखो कैसे लिख सकते हो. ये हमने एस्टिमेटेड, ये देखो यहाँ पे क्या था कि ये वाली लाइन सबसे ऊपर है पर इसके बाद ये वाली लाइन सबसे ऊपर है. इतने हिस्से में ये वाली लाइन सबसे ऊपर है. ठीक है. और हमने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड के लिए कौन सी लाइन सबसे ऊपर है? हेल्थ वाली. हेल्थ वाली. तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड अभी आपने सीखा पिछले ग्राफ में. Yes, Yes. ma'am. इसमें भी अप्लाई हो रहा है. ठीक है. तो आप लिख सकते हो इन द पास्ट इट वाज हेल्थ, इन द फ्यूचर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्थ. ये आपने अपना रफ अपने मन में सोचा है, पर आप ये नहीं लिखोगे हेल्थ सबसे ऊपर था. आप लिखोगे क्या क्या सबसे ऊपर था? परसेंटेज स्पेंडिंग ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ. ठीक है. ये समझ आ गया? हाँ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ. ठीक है. पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड के लिए किस पे मैक्सिमम थी? हेल्थ पे. और फ्यूचर में किस पे मैक्सिमम होगी? हेल्थ. Health पे. ठीक है. So overall the maximum expenditure was done on health for majority of the 2 decades and in the future also it is expected to be the highest. ये क्लियर हो गया आपको? यस मैम. अब सेकंड सेंटेंस में आ जाओ. ओवरऑल का जो सेंटेंस है सेकंड, पर ओवरऑल हमारे पूरे ग्राफ का थर्ड सेंटेंस है. उसमें क्या है? अपने ट्रेंड्स मेंशन करने हैं पास्ट एंड फ्यूचर के. जैसे एजुकेशन में पास्ट में डिक्रीज है, फ्यूचर में सेम रहा है. देखो एजुकेशन में ये जो खर्चा है एजुकेशन का पास्ट में डिक्रीज है और फ्यूचर में भी डिक्रीज है. सेम है ना? वही ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है. और जो रोड्स एंड रेलवेज है, देखो हेल्थ में पास्ट में इंक्रीज हुआ है, फ्यूचर में भी इंक्रीज है. रोड्स एंड रेलवेज में फ्लक्चुएट हुआ है. ठीक है. और फ्यूचर में क्या है? पास्ट में तो फ्लक्चुएट हुआ है, फ्यूचर में डिक्रीज. रोड्स एंड रेलवेज पता चल रहा है? Yes, ma'am. पास्ट में फ्लक्चुएट है, फ्यूचर में डिक्रीज. ठीक है. अब आप कैसे लिखोगे इसको? मैम ओवरऑल ज्यादा लिखना बेटर है कि ओवरव्यू? ओवरव्यू थोड़ी लिखना है. ओवरव्यू को शुरू करते हैं ओवरऑल वर्ड से. उस पैरे को ओवरव्यू कहते हैं. ओके मैम. ओवरव्यू थोड़ी लिखोगे, ओवरऑल लिखना है. दैट इज द ओवरव्यू यू आर राइटिंग और उसकी बिगिनिंग होगी ओवरऑल से. ओके. और मैम जे सेकंड पैराग्राफ में लिखना ज्यादा बेटर है कि लास्ट में? ओवरऑल. अच्छा, ये मैं वैसे पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों को. जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उनको बता रही हूँ. इसको ना यहाँ पे भी लिख सकते हो और लास्ट में भी लिख सकते हो. मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि लास्ट में लिखना गलत है, पर हमने इस पे बहुत 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 एक्सपेरिमेंट किए हैं और हमने ये देखा है कि जब इसको जब आप इसको आफ्टर द इंट्रोडक्शन लिख देते हो ना, और इसको जिस वे में हम आपको सिखा रहे हैं लिख देते हो ना, आपका इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपने लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजंस डाल दी. आपकी टेंशन फ्री हो जाओगे और अपना ग्राफ पूरा कम टाइम में कर लोगे. तो मेरे हिसाब से तो ओवरव्यू को सेकंड पैरा ही बनाना चाहिए आफ्टर द इंट्रो. ओके मैम. ओके. लास्ट मेरी पुरानी एडिशंस में सारे ओवरव्यूज एंड में थे, पर जब आप कोई नई चीज सीखते हो और जो ज्यादा बेटर लगती है तो उसको फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है. यस मैम. ओके. ठीक है. Yes, ma'am. तो अब ओवरव्यू को हम पीछे ही लिखते हैं. हमने ये ट्राई किया है कि इससे कम टाइम लगता है. ओके मैम. ठीक है. ओके. सो हमारा क्या बनना सेंटेंस देखो. ऑल्सो ये हमारे 2 सेंटेंस क्या बने? Overall, the maximum expenditure was done on health for majority of the 2 decades, and in the future also it is expected that this expenditure would be the highest. Also, the expenditure on education
decreased, while on health it increased, and on roads and railways it fluctuated in the past, and the same trends are predicted for the future as well. हमने क्या करा, हमने तीनों के ट्रेंड्स बता दिए, इसके इंक्रीज्ड है, इसके डिक्रीज्ड है, इसके फ्लक्चुएटेड है, एंड द सेम ट्रेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर. इसका मैंने सेम लिख दिया, फ्लक्चुएटेड है, थोड़ा सा सेम रहा है, फिर डिक्रीज हुआ है, तो इसको सेम जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब सेम ट्रेंड हो गया, फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड ही हो गया. चलेगा? यस मैम. यस मैम. ओके, अब हम आ जाते हैं बॉडी पे. नाउ यू हैव कंप्लीटेड द introduction, you have completed the overview, now you come to the body paragraph. अब हमने क्या करा है यहाँ पे ना, जो फ्यूचर है. हाँ जी मैम, एक्चुअली ना लाइक एज हेयर इन दिस लाइन ग्राफ पर्टिकुलर ईयर्स आर गिवन है ना. तो जो पर्टिकुलर ईयर के ऊपर हमें कोई भी फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है, जैसे इंक्रीज डिक्रीज, वो हमारे लिए इजी है. बट समटाइम्स जैसे मॉक टेस्ट में भी आपने वो लाइन ग्राफ दिया था, तो ईयर्स के बीच में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो उनको मींस के जब हमने डाटा राइट करना होता है, तो डाटा राइट करने के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं लाइक नियरली, अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज हमें वो क्लियर नहीं होता कि इतना डाटा आता है. मींस के अगर ईयर नहीं क्लियर तो हम कैसे राइट करेंगे? जैसे अभी आपने बताया स्टार्टिंग में कि बीच में आ रहा था उसका डाटा, तो आपने 2004 ले लिया. ईयरली रफली कर दो बस, दैट इज फाइन. ईयर के लिए भी रफली कर सकते हैं. हाँ, अभी देखो हमने रफली नहीं, अभी हम 2020 में हमने ग्राफ लिखा था ये वाला, अभी 2021 चल रहा है. Yes, और यहाँ पे 2020 है, तो हम 2021 अपनी नियरली 2021 नहीं लिखेंगे, हम 2021 नहीं लिखेंगे. नियरली 2 राइट कर सकते हैं. नहीं, वो नियरली नहीं लिखेंगे. ईयर के लिए हम एग्जैक्ट ही लिखेंगे 2021. जैसे मैम यहाँ पर 2000 एंड 2005 के बीच में क्रॉस आ रहा है ना हमारे पास. एडुकेशन. हाँ, तो फिर हम ये लिखेंगे इन 2003. पता है क्या, इनको इग्नोर करो, आप इतनी डेप्थ में जाओगे ना, आपका बहुत लंबा ग्राफ बनेगा. हाँ जी, ओके मैम, ओके. हाँ, आपका बहुत लंबा, ये इग्नोर करने वाली चीज है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं. ओके मैम, मैं भी प्रीवियसली ऐसा लिखती थी कि both of these lines are intersect at this point, ऐसा लिखती थी. अगर वो किसी खास ईयर पे आ रहा है आप कर दो, अदरवाइज आप देखो कैसे लिखा है, इतना नहीं है कुछ. पिक एंड चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको लिखा जा सकता है, स्ट्रेस नहीं लेना इसका. ठीक है, बहुत लंबा ग्राफ जाता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. ठीक है. ओके, अब यहाँ पे देखो हमने क्या करा है. वी वर हियर बॉडी पैराग्राफ 1 में हमने क्या करना है, नेसेसरी ब्रेक हमने कहाँ डालनी है, जहाँ पे पास्ट और फ्यूचर का ब्रेक है. प्रेजेंट मतलब वो उस ईयर पे ही हम ब्रेक डालेंगे, बीच में कहीं नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा ग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है, तो हम नेसेसरी ब्रेक सिर्फ वहां डालेंगे जहाँ पे हमारा, यहाँ पे 2020 पे डाली, पिछले साल लिखा था. अब थोड़ा सा 2020 पे ही डाल दो, 20 और 21 का कोई खास फर्क नहीं है. पर आगे अगर ये वाला ग्राफ आएगा ना, वो इसको चेंज कर देंगे, उनको भी पता है. दे विल मेक दिस ब्रेक एट द राइट ईयर, दे विल मतलब पुट इट एट द राइट ईयर. थोड़ा चेंज कर देते हैं ग्राफ्स को जब डालते हैं. ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे लिखना है. बॉडी पैराग्राफ 1, इनिशियल डेटा फॉर ऑल द 3 years. यही करा था ना हमने पिछले ग्राफ में भी, BP1 में. Yes, ma'am. वही लिखना है. In 2000, 5% of the GDP was spent on education, while the expenditure on health and roads and railways stood at 4% of GDP each. So 5% was spent on education, 4% each was spent on health and roads and railways. ठीक है, got it? Yes, ma'am. Okay. In the next 20 years, the spending on health increased considerably, reaching 7% of the GDP at present. So in the next 20 years, in the next 21 कर दो आप. ठीक है, डोंट वरी 2000 है, 2021 मान लो. इन द नेक्स्ट 21 years, क्योंकि 20 में भी कंसिडरेबल इंक्रीज है, 21 में भी कंसिडरेबल इंक्रीज, चल सकते हो ना ऐसे. इन द नेक्स्ट 21 years, the spending increased considerably and reached 7% of the GDP at present. Reaching 7% of the GDP at present. Reaching 7% of the GDP at present. Present time के लिए हम कौन सा टेंस लगा सकते हैं, आपको पता है? प्रेजेंट परफेक्ट.
कोई भी ग्राफ जो आपने प्रेजेंट टाइम तक डिस्क्राइब करना है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं। हमने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया उसमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं आ रही, पर अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना होता तो यहाँ पे आप क्या चेंज करते? जोधबीर, ट्राई इट। प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। हाँ, सिर्फ यहाँ पे इतने हिस्से में। हम इसमें लिख देंगे ना, reached consequently reached 7% of the GDP at present have reached And has reached, has increased. present perfect means has or have आएगा ना? Yes, ma'am. See, in the next 21 years, the spending on health has increased considerably and has reached 7% of the GDP at present. यहाँ पे has increased आएगा, has reached आएगा, पर हमने ऐसे लिख दिया reaching, तो ये ठीक है सेंटेंस, हमने वो वाला has वाला नहीं लाया तो भी चलेगा, पर ज्यादा बेटर अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ जाओ वो लिखना यहाँ पे लिख सकते हो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैम मुझे तो प्रेजेंट हम हैज रीच ही आएगा ना, ईडी नहीं आएगा ना? नहीं, ईडी के बिना तो फिर गलत हो जाएगा। हैज के बाद तो हमेशा शॉर्ट थर्ड फॉर्म फॉर्म आता है। चाहिए। मैम हेल्थ के बाद हैज आ जाएगा, और इधर भी मतलब रीचिंग की जगह रीच्ड आ जाएगा, बाकी अब हैज लग जाएगा, बाकी has increased considerably and reached, दोबारा हैज लगाने की जरूरत नहीं है। और रीच के बाद एट नहीं आता, रीच के बाद कभी नहीं आता। ठीक है, These 7% of the GDP at present. By contrast, the expenditure on education, यहाँ पे भी अब present perfect tense लगाओ, present year तक आ रहे हो, has fallen, has के बाद third form आएगी ना? Yes ma'am, has fallen by 1% over the same time period. There was a fluctuation in spending on roads and railways, and it again stood at 4% in 2020. There was a fluctuation in the spending on roads and railways, and it again reached, यहाँ पे भी 4% थी, यहाँ पे भी 4% है, in 2020 लिखा है, हम 2021 कर देते हैं। ठीक है मैम, इसके लिए was ही लिखना है कि इसमें परफेक्ट टेंस डाल सकते हैं? फ्लक्चुएशन वाले सेंटेंस फिर स्टूड नहीं आएगा, स्टूड नहीं आएगा। ओके, हैज रीच्ड ही करना पड़ेगा, तो ऐसे लिख दो। ठीक है, अब ये हमारे 3 सेंटेंस हो गए बॉडी पैराग्राफ 1 के। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ 2 पे आ जाओ। बॉडी पैराग्राफ 2, राइट द एक्सपेक्टेड चेंजेस टिल 2025 एंड गिव फोरकास्ट फिगर्स फॉर 2025। अब बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने पिछले ग्राफ पे क्या करा था, ट्रेंड्स लिखे थे और लास्ट की फिगर्स लिखी थी। अब इसमें क्या करेंगे, ट्रेंड्स लिखेंगे और एक्सपेक्टेड फिगर्स लिखेंगे लास्ट की, बस। समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। सो ये देखो, इन आफ्टर 2020 यहाँ पे 1 कर दो। After 2021, the expenditure on health is expected to increase further, while the spending on education and roads and railways is predicted to fall. In 2025, the expected figures are forecast to be this of the GDP for health, this for education, and a mere this for roads and railways. ठीक है, ये दिखा कि इन दो की expected to rise है, इसकी expected to rise है, इन दो की expected to fall है, इसकी फिगर इतनी हो जाएगी, इन दोनों की फिगर्स इतनी हो जाएगी। समझ आ गया? सेकंड बॉडी पैरा। यस मैम। ये भी खत्म हो गया। ये फ्यूचर की वोकैबुलरी आपको आ गई, अगर आ जाए तो? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ वी विल कम ओवर टू, वी कैन हैव ए शॉर्ट 5 minutes ब्रेक। यस मैम। मैम ये है मैम, बॉडी पैराग्राफ 1 एक बार दिखाइए ना, मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेना है। बॉडी पैराग्राफ 1 का यही है मैम, कल की रीडिंग वाला आंसर शीट शेयर कर दीजिएगा। किसका? रीडिंग वाला पीडीएफ आप उसमें ग्रुप में डाल देना, मुझे याद आ जाता है, भुलक्कड़ हूँ। डन मैम। ओके, अभी हम ना 5 minutes की ब्रेक लेते हैं। अभी मैं पार्ट 1 करके सेशन क्लोज करती हूँ, 5 minutes के बाद दोबारा आते हैं। अब हम करेंगे बार ग्राफ, पाई चार्ट और टेबल। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम।